All right, Ji, next one is called Junaid Akram's Ancestry and Connection to Your Punjabi Roots. Junaid Paji, Sat Sri Akal. Firstly, I want to apologize for something upfront. I don't really watch your main channel, but I religiously follow Ask Ganji Swag. The reason is simple. On your main channel, you feel like a fake public figure, but on Ask Ganji Swag, you feel like a real human being. The kind of things you talk about सुन के एक बार को मुंह से निकल ही जाता है बंदा ऐसी बात कैसे कर लेता है दम है. Your words hit harder because they sound unfiltered and honest. I hope that wasn't too harsh of a critique of your main channel, but the rawness is in Ask Ganji Swag is what makes it my favorite YouTube channel. I'm a Hindu Punjabi born in Patiala, Punjab, and did most of my growing up and education in Mohali near Chandigarh. While I was born into a Hindu family, I've always felt deeply connected to both Hinduism and Sikhism. Fortunately, both religions have many overlapping practices and beliefs, and neither of them mind being fluid in terms of identity, as both of them, in essence, are a way of life than a religion. Over time, I've realized that my identity is far more cultural than religious. My pride comes from my language, my people, and the land of Punjab that raised me, not just from rituals, beliefs, and the Hindu religion. A while ago, in one of your older Ask Ganji Swag episode, you said something that really stuck with me. You mentioned that a few generations ago you suspect that your ancestors were Sikh as well, and that you've always felt connected to your Punjabi roots, even linking it to your early days as a comedian and how you relate to Jaspal Bhatti. I would love to hear more about that. How do you maintain that connection to Punjab while sitting hundreds of kilometers away in Karachi? How do you still feel the pulse of the land, the spirit of the people, the pride of the culture, despite being far from it? I know this isn't your Ask Ganji Swag type of question, but it genuinely warmed my heart to hear you speak Punjabi with such pride and talk about your Punjabi heritage and your people. There's something very comforting about that, hearing someone still hold on to the essence of Punjab, not just as a region, but as a living emotion. With respect and admiration, ABC. Achanuka, you can take my name, Shikar. Shekhar to nahi Shekhar, Mohali, Punjab. Sorry if I pronounced it wrong. First of all, thank you so much for such a lovely email. पहली बात ये कहना कि ये यूजुअल क्वेश्चन देर इज़ नो थीम टू दिस चैनल. जैसा आपने कहा ना कि ये यूजुअल क्वेश्चन नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि यूजुअल क्वेश्चन वही शादी ब्याह रिलेशनशिप्स वाले हैं, इस चैनल की कोई थीम नहीं है. इट कुड बी एनीथिंग. अभी आप इसी एपिसोड में देख लें, अभी ये मैं तीसरा या चौथा सवाल है. एक इकोनॉमिक्स पे आया सवाल, किस किस पे आए थे सवाल, मैं भूल ही गया. ठीक है जी, हाँ, इकोनॉमिक्स पे आया सवाल, एक सवाल आया जी सेकंड मैरिज पे आ गया, ये पंजाबी रूट्स पे आ गया, इंडियन टेनेंट्स पे. सो लाइक दिस इज़ समथिंग व्हाट पीपल रियली एन्जॉय, बिकॉज उसमें आपको एक ही चीज़ में 15 फ्लेवर मिल जाते हैं एक ही एपिसोड में, एंड दैट्स व्हाट पीपल परहैप्स लाइक. सेकेंडली, द क्रिटिक ऑफ माई मेन चैनल, दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है, एंड आई टोटली वैल्यू योर फीडबैक. मे बी मैं आपके दिल के वो तार नहीं छू सका उस चैनल पे जिस तरह मैं यहाँ छू सका हूँ, तो उसमें कोई वो नहीं है. एंड ऑफ कोर्स मे बी वॉट यूर सीकिंग इज़ नॉट अवेलेबल देयर एंड इट्स अवेलेबल ओवर हियर. और रही बात फेकनेस की, सो इट डिपेंड्स व्हाट यू आर वाचिंग. अगर मैं कुछ बेच रहा था तो वो जाहिर है वो फिर बेचने वाली टोन अलग होती है, एक्सप्लेनर वाली अलग होती है. आई हैवंट मेड अ लॉट ऑफ कंटेंट सिंस फॉर द पास्ट 1 year ऑन माई मेन चैनल. थोड़ा सा मैं उससे ऑफ हुआ हुआ था, बट नाउ दैट आई हैव द स्पेस आई एम रियली एक्साइटेड. एंड मैंने यार अभी अपनी टीम से भी ये बात कर रहा था. देखिए, घर आई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए, लेकिन इतनी भी लक्ष्मी के पीछे ना पड़ना चाहिए कि बंदा अपनी कोर चीज़ से ही हट जाए. और भी मैं खुद बात कर रहा था कि लोग अपनी कोर से हट जाते हैं, राइट. तो ऑब्वियसली आई हैड सर्टन टारगेट्स जो कि मुझे मीट करने थे, जिसकी वजह से बिजनेस, देखिए, इट्स बिजनेस और पैशन ओवरलैप करता रहता है. कभी पैशन ज़्यादा दिखता है, इतने साल पैशन पे चला रहा था, इतने प्रोजेक्ट खोल लिए, सर पे आके गिरे सारे, फिर वो बड़ा मसला हुआ, फिर थोड़ा बिजनेस साइड देखना पड़ा. तो ये एक आर्टिस्ट की ना ये बैटल चलती रहती है कि बिजनेस एंड आर्ट दोनों को लेके चलना है. लेकिन अभी मैंने टीम मेंबर को यही बोला, यार जनवरी से एड्स को बिल्कुल लिमिट करना है. वंस वी अचीव अ सर्टन मार्क, तो अच्छा फिर उसमें ये है ना कि ये कोई इंडस्ट्री हमेशा रहेगी नहीं. कल को एआई आ जाएगा, टेक ओवर कर लेगा, तो डर में ही रहता है इंसान कि यार अभी जितना समेट सकते हो समेट लो, लेकिन यार नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर फैंस और लूजिंग द वेरी क्रक्स ऑफ जो फाउंडेशन थी. फाउंडेशन नहीं छोड़नी चाहिए.
पर्सनली डीपली थिंक अबाउट इट, और मुझे लगता है कि मैं वाकई थोड़ा दूर हो गया हूँ, उसको वापस करना होगा, और इंशाल्लाह यू सी दैट चेंज वेरी वेरी सून। दूसरी चीज़ ये कि अब अगेन उसमें अगर पॉडकास्ट है या कोई एक्सप्लेनर है, वो एक अलग टोन होती है। यहाँ पे इट्स एब्सोल्युटली अनफिल्टर्ड रॉ। आप अगर इसको म्यूट कह रहा हूँ, देखें और सिर्फ सुने, आपको लगेगा, लोग अक्सर फीडबैक देते हैं कि हम गाड़ी में एपिसोड सुनते हैं, हमें लगता है पीछे ही दोस्त बैठा कोई बात कर रहा है, बिकॉज की टोनालिटी बिल्कुल इट्स वेरी आम, एंड दिस इज समथिंग दैट आई लर्न वेरी अर्ली। मैं जब टीवी देखता था तो मुझे बड़ा फेक लगते थे लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, इस तरह करके बात करते हैं, लाइक नोबडी टॉक्स लाइक दैट। इट्स लाइक 50s में जो मूवीज़ बोलते ना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू नो, द थ्री स्टूजेस की जो जो टोन होती थी, नोबडी टॉक्स लाइक दैट। वो डिस्टिंक्ट इसलिए रखी जाती थी ताकि पहचान में आए। तो what really connected you with me, and not just you Shikar, but like hundreds and thousands of people out there, is because I sound like one of their friends. उनको लगता है कि हम चाय के होटल पे बैठे हैं और हम बात सुन रहे हैं। So it's that rawness which brings people closer, और कोई बनावट इसमें लगती नहीं, और इसमें होती भी नहीं है ऑनेस्टली। बहुत सारी ईमेल्स ऐसी होती हैं जो कि मैं पहली बार उसी वक्त पढ़ रहा होता हूँ, लाइक ऑन स्क्रीन पहली बार। एक तो होता है कि चलो एपिसोड से पहले देख ली, अच्छा किस किस टाइप की आई हुई है, कोई बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो नहीं है, फलान ढिमकाना ये वो। लेकिन एक होता है कि यार मूड नहीं है मेरा रिलेशनशिप का पढ़ने का, और या 2 से 3 बार हो गया यार एक ही एपिसोड में, फिर मैं जाता हूँ ईमेल पे, एंड देन आई रैंडमली सेलेक्ट। तो वो तो बिल्कुल उसी वक्त मैं देख रहा होता हूँ, लाइक कैमरा ऑन होता है उसी वक्त देखता हूँ, एंड देन आई स्टार्ट। खैर, सो या मे बी दैट्स, एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर माई फर्स्ट थाट्स, दे आर नॉट इवन माई सेकेंड थाट्स। होता है ना कि आपने कुछ बोल दिया, फिर रात को सोचा भी नहीं यार उसको मैं ऐसा जवाब देता, तो वो रूम भी नहीं होता अक्सर तो। But I'm glad it connects people. And speaking of connection, so how I feel connected, I'm not sure if they were Sikh, but they were definitely Kashmiris. My mom's dadi used to speak proper Kashmiri. My mom picked up a few words, and then like हम तक तो वो पहुँचे ही नहीं ना, तो लैंग्वेज एरोड हो जाती हैं लोगों के साथ। अब देखो माई सन ही टॉक्स इन अ प्रॉपर पॉश ब्रिटिश एक्सेंट, तो वो तो उर्दू भी सही बोल ले हमारे लिए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो वो शाइस्तगी से तो बोल ही नहीं पाएगा, तो हमें पानी चाहिए इस तरह करके तो बात करेगा वो, तो फिर लेट अलोन पंजाबी, एंड पंजाबी विल डाई विद मी। सो या, बट लाइक आई थिंक ऐसे ही चलता आया होगा, लैंग्वेजेस आती हैं चली जाती हैं, लोग आते चले जाते हैं, एराज आते हैं चले जाते हैं। But like, so I'm not really sure if we had Sikh roots, because we don't have that shajara, we don't have that lineage ka historical data, so we don't know kaun tha ya kya tha. And that's something that I really want to know, and I hope wherever I enter heaven, if I do, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे लाइक आई वांट टू सी द होल टाइमलाइन। तो टाइमलाइन देखनी है, लोगों से मिलना है, एंड देन आई वांट टू सी व्हाट देयर प्रोफेशंस वर, एंड इफ़ आई एम द ओनली पब्लिक फिगर, या उनमें भी कोई स्टैंड अप करता था, कोई थिएटर वेटर करता था, या सारे लकड़हारे थे, या फसलें काटते थे, या क्या करते थे। आई रियली वांट टू नो मर्डरर कितने थे उसमें, यू नो, कितने लोग जेल में गए, कितनों का मर्डर हुआ, यू नो। सबकी तो वो नहीं हुई ना, तबई मौत जिसको कहते हैं उर्दू में, बीमारी से या किसी भी वजह, या फिर एज फैक्ट, ओल्ड एज। पुराने ज़माने में ओल्ड एज भी 35 ही होती थी। Anyway, so yeah, but however, because my parents speak Punjabi among each other, हम तक तो पहुंचा ही नहीं उन्होंने। So yeah, and my nana's brother, so वो लोग तो straight up लुधियाना में, they were like young guys, like they were not married, but yeah, like they remember, like my nana was a truck driver. सो वो लुधियाना से कलकत्ता जाते थे सामान लेके आना, फिर पाकिस्तान आया, ही जॉइंड द नेवी, एंड देन लाइक ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड द लास्ट बिजनेस ही वाज इन वाज ही वाज अ टेलर मास्टर, और वो पर्दे सीते थे, और ही वाज गुड एट इट, ही वाज गुड एट सो मेनी थिंग्स। माय नाना एंड देन माय मामू, हरफन मौला जिसको कहते हैं, दे कुड डू एनीथिंग, सब करते थे यार। तो माय नाना हैड अ कारखाना अपने घर के बराबर में ही, जहाँ आज भी मेरे मामू रहते हैं, सदर बोरी बाज़ार में,
मोची गली उसको कहते हैं। ज़रा कॉन्टेक्स्ट से सुनिएगा। तो वो मेरे नाना, उनके बड़े भाई और उनके जो बड़े बच्चे थे वो पर्दे का काम करते थे। अच्छा, उन्होंने अपने बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ाए, बट माई नाना वॉज वेरी एडमेंट। तो माई मामूज वो एंड माई मदर स्कूलिंग सारी प्रॉपर हुई, उनके बच्चे बस स्कूल गए वट जो भी है, तो पर्दों का काम करते थे। तो उनके एक कज़न थे, वो इंग्लैंड चले गए थे अंग्रेज़ों के टाइम, एंड ही हैड मेड गुड मनी। तो उन्होंने एक वचन लिया था अपने आप से कि मैं 100 लोगों को हज कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, हज उस वक्त होते थे शिप से। ये कहानी सुने ज़रा, मुझे भी अभी रिसेंटली पता चली है यार, इतनी फिल्में बन सकती हैं मेरे ख़ानदान पे। तो भाई वो हाजी कैंप, जो लोग कराची में रहते हैं बोर्ड बेसन पे, आपने अगर कभी खाना वाना खाया हो, उसके सामने देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड हाजी कैंप। अब तो कैंप नहीं लगते, अब तो सब सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट लेते हैं, सीधा मक्का मदीना उतरते हैं, राइट। पहले किश्तियों में जाते थे, तो पूरे पाकिस्तान से लोग जमा होते थे कराची में, हाजी कैंप में उनका स्टे होता था, और फिर उसके बाद शिप में बैठ के, जो कि शिप फिर पहुंचता था 1-2 हफ्ते बाद, उस तरह जाते थे। माई फादर डिड हिज फर्स्ट हज व्हेन ही वाज 10, तो वो शिप पे गए थे। तो भाई उन्होंने वचन लिया था उन अंकल ने कि मैंने 100 लोगों को हज कराना है। तो वो हर साल अपने ही लुधियाने के लोगों को, जो कि फिर माइग्रेट हो गए थे, समहाउ ही हैड केप्ट रिकॉर्ड। उनके पास भाई सबका कनेक्शन था, फलाने के पुत्र को कराना है, फलाने को कराना है, फलाने को कराना है। तो वो लुधियाने से सारे आ गए थे। ठीक है, कोई लाहौर, कोई गुजरांवाला, कोई फैसलाबाद, किधर ही हैड ट्रैक्ड एवरीवन। तो फिर सबकी ख्वाहिश होती थी यार इस साल हमें भेज दे, इस साल हमें भेज दे। तो वो एक लिस्ट भेजते थे मेरे नाना को कि भाई ये हाजी इस साल आ रहे हैं, तो जब तक इनका शिप नहीं लगेगा दे विल स्टे एट योर्स, मतलब योर कारखाना। सो आई फर्मली रिमेंबर आई वुड बी 4 और 5। तो जब मैं जाता था उनके घर तो मैं कारखाने ज़रूर जाता था। आई यूज़ टू लव दैट स्मेल, धागे की या कपड़े की, और इतने मनोमन कपड़ा होता था। वो कारखाना आज भी है, लेकिन अब उसमें किसी पख्तून अब तो वहाँ सारे पठानों की दुकान आ गई ना, तो सब उन्होंने ले लिया। तो कोई कोयटा वाली फैमिली है, कोई वज़ीरिस्तान की फैमिली है, इवन अफ़गान वगैरह पता नहीं है कि नहीं है, चले गए वापस। तो किसी ने जूते का बना लिया, किसी ने गोडाउन बना दिया वगैरह वगैरह। सो वहाँ कपड़ों के थान होते थे बड़े बड़े, तो उस पर मैं छलांगे मारता था और खेलता था। और मास्टर साहब बोलते थे नाना को, तो मास्टर साहब सिलाई कर रहे होते, वो सुबह फजर में जाके खोलते थे अपना कारखाना। सो एक दिन मैं गया, वहाँ लाशें ही लाशें हैं। पहले ये क्या है, तो वो सारे हाजी थे, वो एहराम में थे। अच्छा, एहराम उन्होंने इधर ही से बांध लिया था, शायद वो जा रहे थे उस दिन, क्योंकि आपको उन्हीं कपड़ों में जाना होता है ना, फिर उसी में आप एंटर होते हैं। तो इतने सारे लोग दाढ़ी वाले, मैंने ये कौन लोग हैं। तो फिर वो घर में बोला था हाजी आए हुए हैं, और तो उनकी फिर हम खिदमत करते थे। सो लाइक दे वुड स्टे एट आवर्स, मतलब फॉर एग्जांपल वो सारे ट्रेनों में बैठ के आए, उनको ट्रेन स्टेशन से पिक करना या बस स्टेशन से पिक करना, कारखाने में मेक शिफ्ट बेड्स बनाना, उनका खातिरदारी करना, फिर घर से खाना पक के आता था, नानी भेजती थी तरह तरह आलू शोरबा और फलाना ढिमकाना और पाए, दिस एंड दैट, उनकी खिदमत होती थी। एंड देन फिर जिस दिन उनका शिप लगना होता था, फिर उनको हम छोड़ने जाते थे। सो ये उनकी ख्वाहिश थी उन अंकल की, जो यूके में थे, कि 100 लोगों को जाना है। तो वो 10-12 करके, उनके जिस दिन 100 हुए ना, आई स्वेयर टू गॉड अगले हफ्ते उनकी डेथ हो गई। मतलब यार मैनिफेस्टेशन, क्यों, उन्होंने कहा था यार मरने से पहले 100 लोगों को हज कराने, और जिस दिन 100 हुआ अगले हफ्ते ही पास्ट अवे, एज इफ अल्लाह ने उनको रखा हुआ इसलिए था कि भाई दिस इज़ योर डेस्टिनी, ये पूरा कोर्स कर लें आप, फिर आप ऊपर आ जाएं। सो यस, सो अब मैंने बड़ी लंबी कहानी खींची है, बिकॉज आई जस्ट रिसेंटली फाउंड आउट, आई एक्चुअली आस्क्ड माय मामू कि आई यूज्ड टू सी दोज पीपल, वो कौन होते थे कारखाने में। सो देन ही टोल्ड मी दिस एंटायर बैक स्टोरी, एंड आई वाज लाइक शिट, हाउ डिड आई नॉट नो दिस। सो माय नानाज यंगर ब्रदर, वो अशरफ चाचा, उनको चाचा जी हम बोलते थे, ही वुड ऑलवेज बी कलफ वाले शलवार कमीज, वेस्ट कोट, पॉकेट स्क्वायर, ब्राउन रे बैंड्स, जिना कैप और उनकी छड़ी, और वो पूरे इतने बड़े जग में कस्तूरी दूध होता है, दूध को अगर आप पकाएं 8 घंटे, वो अजीब ग्रीन कलर का हो जाता है। तो भाई वो पीते थे पूरा जग यूं करके, वो पहलवान थे, और उनको मीठा इतना पसंद था, उनकी मिठाई की दुकान पे नौकरी लग गई, वो भी गुजरांवाला में। वाह, दैट वाज हिज लास्ट जॉब। कुछ जानने वाले ही थे लुधियाना वाले, उन्होंने रख लिया बिकॉज वो रिटायर्ड थे,
तो वो फिर शरीफ थे तो कैश काउंटर पे रखा था, फिर उनकी नज़र कमज़ोर होने लगी, याददाश्त गई, फिर वो हिसाब किताब में बड़ी गलतियाँ होने लगी, तो फिर उन्होंने हमें बड़ा रिक्वेस्ट किया कि देखें लाइक ही इज़ वेरी ओल्ड नाउ, फिर उनको अपने घर में रख, मतलब वहीं पे ही जो रिश्तेदार थे वहीं, एंड देन ही सैडली पास अवे। ही वुड हैव वंडरफुल स्टोरीज एज मच एज आई रिमेंबर। मैं बहुत छोटा था जब वो आते थे, सो उनकी बस रूटीन ये थी, वो छड़ी लेके अपनी तैयार होके और वो गली के कोने पे खड़े थे, तो कोई भी सिख आ रहा होता था बस जी शुरू पंजाबी, और वो सिख घर पे ही आता था सीधा, मतलब वो जा नहीं सकता, वो रोटी खाए बगैर जा नहीं सकता, वो उन्होंने नाता जोड़ लेना था, कोई जड़ावाला का निकल रहा है, कोई जड़ावाला तो खैर पाकिस्तान में, सॉरी, कोई लुधियाना का है, कोई पटियाला का है, कोई अमृतसर का है, कोई कहाँ का है, तुसी कितों दे हो, तुसी कितों दे हो, कर करके चलो जी। इतना सा घर था, आई विल डेफिनेटली मेक अ व्लॉग इन दैट हाउस। वो इतना छोटा था, और उसमें देखो उस ज़माने में घर छोटे थे, दिल बहुत बड़े थे। आई किड यू नॉट, उस 2 कमरे के छोटे से घर में जहाँ पे आप क्रिकेट की एक पिच नहीं बन सकती, उसमें 21 लोग रहते थे, उसके ऊपर मेहमान भी आते थे, 3 फैमिलीज रहती थी भाई, क्योंकि वो माइग्रेंट थे, इंडिया से आए थे, डरे हुए थे, एंड इतना डरे हुए थे कि सामने वाला घर खाली है वहाँ नहीं जाना, साथ रहना, सहमे हुए थे, ट्रॉमाटाइज थे, राइट। ये तो अब चीज़ें हमने अब समझी है ना, ट्रॉमा क्या होता है, फलाना ढिमकाना। अगलों ने लाशें देखी, ट्रेन भरी हुई लाशें देखी, वो सब छोड़ छाड़ के, एंड वट एवर दे हैड दे जस्ट लेफ्ट बिहाइंड। तो वो डर के सहम किस तरह रहते थे, ठीक है, उसी में बच्चे भी हो रहे हैं, पता नहीं कैसे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे थे। तो 21 लोग रहते थे। वो बिल्डिंग आज भी है, मैं जाता हूँ मामू के घर, तो मैं आपको किसी दिन वो दिखाऊंगा कि इस स्पेस में इतने लोग रहते थे, और उसमें मेहमान भी आ रहे हैं, तो भाई लस्सी भी आ रही है, फलाना ढिमकाना। सो आई सॉ दैट ऑल माई लाइफ ग्रोइंग अप। और फिर मेरा भी बड़ा एक इंस्टेंट कनेक्शन डेवलप हो जा। फिर मैं जब दुबई में रहता था, एवरी टाइम आई वुड सी अ सिख, मुझे पर अंदर से हंसी आती थी, एंड देन आई वुड फील लाइक यार दिस इज वन ऑफ मी, दिस लाइक इज वन ऑफ अस। और मुझे जेन्युइनली खुशी होती थी सिखों को देख के, और मैं वैसे ही सलाम दुआ करना, हाल चाल पूछना, दिस एंड दैट। सो या आई बिलीव लाइक, सो चले सिख ना भी हो हमारी फैमिली, बट आई नो कि like they spent a whole generation in Ludhiana. After the problems in Kashmir, they came down and they started living in Ludhiana. And Patiala की आपने बात की, so my dada was working for this widow from Patiala. They were also our lifelong family friend. वो भी माइग्रेट होके हमारी ही बिल्डिंग में आए। अरे भाई इतना जुड़े हुए थे लोग, उधर भी साथ रहते थे, यहाँ भी एक ही बिल्डिंग में सबने घर लिया। सो वो माँ बेटी अकेली थी, उनका so they were from a well off family, but then widow थी, तो उन्होंने, so they hired my dada, and how that happened was my dada was good with numbers, so he was an accountant, he did a lot of things, he was a good merchant. तो I think I told you this story, दोबारा सुन लें। कैलकाटा में थे, and then one of his daughter, one of my popo, we never knew about her, died, और उनको किसी ने बताया नहीं। सो माई नाना हु वॉज ड्राइविंग ट्रक्स अक्रॉस इंडिया, ही वेंट टू कैलकाटा, ही सॉ हिम, मोहिउद्दीन नाम था उनका, मेरे दादा का। तो बोला कि तुम आए नहीं, तुम्हारी बेटी की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने व्हाट द हेल, उन्होंने हमने तो तार भी भेजा था, यानी ख़त भेजा था। एंड देन ही कन्फ्रंटेड हिज एम्प्लॉयर, टर्न्स आउट एम्प्लॉयर ने ख़त देकर छुपा दिया था। सो ही लेफ्ट दैट जॉब एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट पटियाले वाली लेडी, जिनका होइजरी का काम था, तौलिए का, रुमाल का, मोज़ों का, स्वेटर्स का। एंड देन माई दादा वुड ट्रैवल फ्रॉम लुधियाना टू कराची, और फिर कराची से बसरा, बिकॉज इराक, बसरा इज़ ऑल्सो आई बिलीव इज़ अ कोस्टल सिटी। और जो सिंदबाद की कहानी है, बाय द वे, सिंदबाद वॉज एक्चुअली सिंध का सेलर, और सिंध और बाद हवा को कहते हैं। तो ही वॉज सच अ गुड सेलर कि वो अपनी सेल वो डूबने नहीं देता था, तो वो लेजेंड था इराक में, उसका नाम सिंदबाद रख दिया। इट वॉज एन एक्चुअल कैरेक्टर बाय द वे, बट अब आई डोंट नो कि कितना फिक्शनल है कितना रियल है। सो बसरा वॉज अ बिग मार्केट, सो माई दादा वुड ट्रैवल ऑल द वे टू बसरा, sell her merchandise there, and then come back. Imagine all of this happening without internet, without debit card, without phone, but like चल रहा था काम यार। Imagine, मुझे समझ नहीं आता। मैं अगर वो अक्सर वो देखता हूँ इब्ने बतूता की ट्रैवल्स, कि वो भाई कहाँ से निकला और 30 साल बाद कहाँ से बरामद हुआ, तो उसके बाद करेंसी क्या थी, हाउ वॉज ही अर्निंग,
कितने गोल्ड कॉइन्स लेके निकला होगा, रास्ते में लुटा नहीं क्या, कितने की ब्रेड, कहीं डेस्परेट हुआ तो एक टुकड़ा ब्रेड के लिए पूरा गोल्ड कॉइन दे दिया होगा, कितना लेके निकला था कि उसके पैसे नहीं खत्म होते, ही वाज ट्रैवलिंग एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर। आई डोंट नो मैन, बट पीपल मैनेज समहाउ। So that's how my dada and nana were friends, and then came to Karachi, no contact, पता नहीं था कि वो भी इधर आए हैं। And then one fine day at the zoo, which is called Gandhi Garden to this day in Karachi, they met because zoo ही था उस वक्त, and that's how the शादी happened between my parents. Anyway, so I've always felt a very strong connection, क्योंकि यार मेरे जो जितने immediate हैं वो तो, my father was born in Ludhiana, right? He's 80 now, mashallah. He was 2 when he migrated. So he's born there. Everybody he knew was born there. Everybody my nana knew was there. My mom was born in Karachi. She's younger. But सारा connection, immediate connection तो सारा वही है भाई. अब first generation हमारे सामने थी, मामू सब कुछ, right? So yeah. So वो connection आ ही जाता है यार कहीं ना कहीं से. एंड इट्स देखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई, पहले कल्चर होता है हमारे यहाँ, बिकॉज मजहबी टीका बहुत है, तो हमने रिलीजन फर्स्ट कर दिया कि एवरीबडी इज़ बॉर्न रिलीजन एंड यूर अ मुस्लिम फर्स्ट एंड देन समथिंग एल्स, जबकि ऐसा नहीं होता, कल्चर आगे होता है, इससे कोई रिलीजन छोटा नहीं हो जाता। रिलीजन की शनाख्त देखो, रिलीजन तो ट्रैवल करता है, कल्चर ने आपको ज़मीन से जोड़ा हुआ है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो रिलीजन तो इस ज़मीन का नहीं है, ट्रैवल करके आया है, बट कल्चरली डीएनए वाइज आप इधर ही थे कितने हज़ार साल से। अब ये तो आप ही लोग बेहतर जानते होंगे, रिलीजन टहलता हुआ या ठहरता हुआ या फिर सफ़र करता हुआ आप तक पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन इस ज़मीन से आप उससे पहले से थे। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे बड़े, क्या पता गोश्त खाने के लिए हो गए हो कन्वर्ट, एक मजाक करता हूँ, ऐसी वो बात नहीं, ज़ाहिर है मैसेज अच्छा लगा होगा उनको, किसी ना किसी के दिल में तो आया होगा यार, अबे यार बीफ निहारी होगी तो मज़े की, चलो यहाँ आ जाता हूँ। जैसे बहुत कन्वर्जन्स क्रिश्चियनिटी में हुई कि यार मार पड़ती है उस रिलीजन में, तो चलो क्रिश्चियनिटी में तो सब बराबर हैं, चलो हम यहाँ आ जाते हैं। बहुत सारी कन्वर्जन्स देखे ना, कल्चरली मोटिवेटेड भी तो थी। सो खैर, अब उस डिबेट में हम नहीं जाते। तो इस ज़मीन के हम जितना अपने आप को बोलते हैं हम अरबी हैं, हम तो टर्किश हैं, हम फलाना हैं, लेकिन ये सब गलत है, हम वैसे दिखते ही नहीं हैं। अब इंटरनेट का दौर है, अब इंस्टाग्राम का दौर है, आप सब ने ट्रैवल किया ही होगा आगे पीछे, आप जाके 2 मिनट में बता देंगे कि हम ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते, हम बिल्कुल ईरानी नहीं दिखते भाई। हाँ होंगे कुछ, जैसे हैदराबाद वाला सवाल एक आया था, तो वो मुझे फिर बाद में जब फर्दर रिसर्च की, एक ईमेल भी आई थी उसके बारे में कि देयर वर अ लॉट ऑफ माइग्रेशन ईरान से, फारस से, और जो पारसी थे वो भी ज़ाहिर है वहीं से ही आए थे। वो यहाँ के अगर केम छो मजा मचो कह रहे हैं तो वो गुजराती तो नहीं थे सारी ज़िंदगी, वो तो फारस के थे, तो यहाँ आके यहाँ के रंग में ढल गए। खैर वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ज़रूर यूट्यूब पे देखिएगा कि हाउ पारसीज फाउंड रिफ्यूज इन गुजरात, और फिर यहाँ के राजा को किस तरह उन्होंने मनाया। मैं आपको सुना देता हूँ कहानी। सो जब पारसीज, ज़ोरोस्ट्रियन, बाय द वे ज़ोरोस्ट्रियनिज्म इज़ द फर्स्ट मोनोथियस्टिक रिलीजन इन द वर्ल्ड, यानी पहले हमेशा पॉलीथियस्टिक थे, मल्टीपल खुदा होते थे, जैसे हिंदुज़म में है या ग्रीक मिथोलॉजी में आप देख लें, डिफरेंट उसमें देख लें आप, प्री एब्राहमिक रिलीजन्स अगर आप देखें तो ज़्यादातर आपको पॉलीथियस्टिक मिलेंगे, यानी इसमें मल्टीपल। फर्टिलिटी की देवी अलग है, अच्छा धन की देवी अलग है, ताकत का देवता अलग है, इस तरह होता है, राइट। बट ज़ोरोस्ट्रियनिज्म वाज द फर्स्ट, अहूरा मज़दा कहते हैं, मज़दा गाड़ी वाला, वही स्पेलिंग है, दैट्स व्हाट दे कॉल्ड देयर गॉड। उसकी पूरी देख लीजिएगा मिथोलॉजी है जो भी है, बट इट वाज द फर्स्ट मोनोथियस्टिक रिलीजन इन द वर्ल्ड। और ईरान, फारस बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और बहुत कामयाब सिविलाइजेशन थी अपने टाइम की। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अगर आप कॉलिन फेरल की अलेक्जेंडर फिल्म देखें, आई एम नॉट श्योर कितनी वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट है, तो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन उसमें ये दिखाया कि अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया जब वो पूरी दुनिया फतह करता हुआ आया, अच्छा अलेक्जेंडर को कीड़ा ये था, सॉरी यार बात पंजाब से शुरू हुई, मैं अलेक्जेंडर पे पहुंच गया, तो उसको बस एक ठरक थी, उस ज़माने में दुनिया फ्लैट थी,
उसको दुनिया का कोना देखना था कि कोना किधर है। वो कोना ढूंढते ढूंढते हिमालय तक आ गया था, फिर इंडिया में आया, फिर उसको सिफिलिस हुई वगैरह वगैरह। तो उसमें आप देखिएगा अलेक्जेंडर, अगर आपने कॉलिन फैरल की नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इट्स अ गुड मूवी। तो वो जब फारस आया पर्शिया, और उसने जब यहाँ का महल देखा कि भाई फाउंटेन, और यूं पानी आ रहा है और यूं जा रहा है, और मतलब खूबसूरत देवियाँ बैठी हुई हैं, दिस एंड दैट, ही वॉज स्टन्ड। क्योंकि उसके जहन में तो जिस तरह आज के दौर का अमरीकी बोलता है ना, पाकिस्तान में तो ऊंट चलते होंगे, राइट, तो उसका भी इसी तरह का प्रेजुडिस होगा कि यही सुना होगा कहानियों में कि हाँ वहाँ के लोग तो जंगली रंगरूट टाइप के वगैरह वगैरह। बट व्हेन ही वेंट देयर ही सॉ व्हाट अ फ्रीकिंग सिविलाइजेशन। कारपेट ईजाद हुआ था भाई वहाँ पे। कारपेट की बहुत अच्छी स्टोरी कहाँ से कहाँ निकल रहा हूँ। कारपेट की बहुत अच्छी स्टोरी है, यूट्यूब कीजिएगा, व्हाट्स द टाइटल, हाउ डिड कारपेट मेक, लाइक यूज योर ब्रेन। उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो एक बाप ने अपनी बेटी के लिए कुछ बनाना चाहा था, एंड देन दैट्स हाउ द कारपेट मेकिंग स्टार्ट। खैर, सॉरी ये बंद हो गया। तो अलेक्जेंडर जब आया, सो हाँ, सो फिर ज़ोरास्ट्रियन जब वहाँ थे, फिर एसेंशियली व्हेन द मुस्लिम्स टुक ओवर, करेक्ट मी अगर फैक्चुअली कोई बात गलत हो, तो उनको थ्रेट फील हुआ कि यार कन्वर्जन करनी पड़ जाएगी, और बहुत सारे हो भी रही है। सो एंड ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू लीव आवर रिलीजन। तो उन पे जब मुश्किलात आई फॉर वट एवर रीज़न, शायद वो कन्वर्जन थी, वॉर थी, या फैमिन था, जो भी था, वो आए गुजरात। उन्होंने बोला यहाँ के राजा को कि हम यहाँ रहना चाहते हैं और हम पीसफुल कम्युनिटी हैं, तो हमें यहाँ पे रिफ्यूज दी जाए। अब गुजरात का वो महाराजा, मुझे नाम नहीं याद, ऑब्वियसली वॉज लाइक TSA इन अमेरिका कि भाई यहाँ क्यों आ रहे हो, इलीगल इमिग्रेंट वगैरह वगैरह, और हमारी डायनामिक्स को नुकसान पहुँचेगा, यू नो, यू नॉट वेलकम ऑफ द आइडिया ऑफ के आउटसाइडर आके रहे। तो फिर जो लीडर था उनका, उस कम्युनिटी का जो भी था, उसने बोला कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जग में दूध और अलग से शक्कर ला के दें। तो बादशाह ने बोला है ये क्या मांग रहा है, चलो। अब बादशाह ने बोला अगला भी बादशाह ही है, तो ऑनर करते हैं उसकी रिक्वेस्ट। तो मंगाया, तो दूध में उसने चीनी डाली और चमचा हिला दिया। जब चमचा चलाया तो चीनी गायब हो गई। तो उसने ये मिसाल दी कि हम आपके साथ ऐसे रहेंगे जैसे दूध में शक्कर, हम आपको नज़र नहीं आएंगे लेकिन आपकी सोसाइटी में मिठास पैदा करेंगे। तो ये मिसाल ने बादशाह का दिल जीत लिया। तो उसने बोला कि ठीक है, आज से आप हमारी सोसाइटी के मेंबर हैं। और वो दिन और आज का दिन है, आप देखें टाटा पारसी, आप देखें गोडरेज पारसी, ठीक है, आप और जितनी निकाल लें फैमिलीज, बड़े बड़े बिजनेसेस, देख गुड, पाकिस्तान में भी थे भाई, हमने तो भगा दिए। हमने तो बोला भाई सुन्नी हो जाओ नहीं तो अनसुनी हो जाओ, सब भगा दिए। 800 बुड्ढे रह गए अब यहाँ पे बेचारे, दे आर जस्ट वेटिंग टू डाई, और कुछ भी नहीं, उनके सब बच्चे बाहर चले गए। इट मेक्स मी फील सो सैड। वंडरफुल कम्युनिटी। बस एक बहराम अवारी हैं, वो अवारी होटल खोल के बैठे हुए हैं, वो यहाँ रहते हैं, बाकी सारे बिजनेसेस तो चले गए। इंडिया में दे थ्राइव्ड, आज देखें इकोनॉमी टाटा कहाँ लेके खड़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप। एनीवे, तो बात कहाँ से शुरू हुई यार। लोग मूव होते रहते हैं आगे पीछे। ज़ोरास्ट्रियन इधर आए, गुजराती बन गए, हम उठ के यहाँ आए, डोंट स्पीक अ वर्ड ऑफ पंजाबी। बट या DNA तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो अंदर ही रहेगा, उसको तो हज़ारों लाखों साल नहीं चेंज कर सकता। तो एक कनेक्शन तो है। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ यूनिवर्स। देखें, कार्बन इस प्लैनेट का हिस्सा ही नहीं था, वो तो आया ही सितारों से था। जब सितारे यहाँ भर भर के गिरते थे तो उससे कार्बन बना, कार्बन से एवोल्यूशन, जो भी फिर इंसान बना। तभी कहते हैं वी आर ऑल मेड ऑफ स्टार्स। और हम में से जो भी ज़्यादा मशहूर होता है उसको हम सुपरस्टार कहते हैं, क्योंकि वो चमकता है, 100 लोगों में अलग नज़र आता है, ठीक है ना। आप अगर खड़ा कर दें कोई सुपरस्टार रैंडम रोड पे, अलग ही नज़र आएगा, क्योंकि वो ग्लो कर रहा होगा, इसलिए उसको सुपरस्टार कहते हैं। वी आर एसेंशियली ऑल मेड ऑफ स्टार्स, सो वी आर ऑल कनेक्टेड वन वे और दी अदर। अब ये मेटाफिजिक्स की बातें, अब ये साइंस इस पे बिलीव नहीं करती, मगर ये कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट। सो येस, ह्यूमन कनेक्शन इज़ देयर। आई
see someone and I feel instantly connected, and then you marry people and you don't feel connected at all. ऐसे भी तो होता है, रिपेल करते हो आप. यार हम एनर्जी बॉल्स हैं और ये हमारा शेल है. ये जो शेल का पंप नहीं, ये हमारा शेल है. असल में सोल जो है ना, सोल ने हमें ऊपर पहना हुआ है, क्योंकि सोल दिखती नहीं है. आपने नोटिस किया होगा जब तक इंसान जिंदा होता है तो वो रमशा होती है या वो सलीम होता है, लेकिन जब वो मर जाता है ना तो हम ये नहीं पूछते सलीम कहाँ है, हम कहते हैं डेड बॉडी कहाँ है. क्योंकि सलीम सोल थी, सोल रमशा थी. सही है, सोल जुनेद है. अगर ये सोल चली जाएगी तो ये बॉडी होगी, लाश होगी. बॉडी कहाँ रखी है जी? बॉडी उस कमरे में. ये नहीं बोलेंगे जुनेद कहाँ रखा है. यू नेवर से दैट, राइट? तो आपकी सोल अलग. तो सोल ने ये शेल पहना हुआ है और सोल का कनेक्शन होता है जो कि आप मेजर नहीं, उसकी कोई डिवाइस अभी बनी नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते, बट वो कनेक्शन फील करती है या फिर वो रिपेल करती है. और आपने देखा है वाइब जिसको कहते हैं ना, यार वाइब मैच नहीं हो रही, वो क्या है? क्योंकि आप एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो और अगला एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है. अगर दोनों एक ही पे कर रहे हो, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड गोल्स, तो आप कहते हैं यार ये बंदा काम का है, ये बंदी काम की है, आई फील कनेक्टेड टू हर, यू नो. वरना आप क्या कहते हो? यार वाइब मैच नहीं हो रही, क्योंकि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है. रेडियो की बात है ना, एक FM 109 पे चल रहा है, आप 89 पे खड़े हो, मैच कैसे हो गए? तो तभी वहाँ पे हिंदी गाने चल रहे हैं, यहाँ पे गुजराती गाने चल रहे हैं, उधर भोजपुरी चल रहा है. भोजपुरी चैनल पे पंजाबी चला जाएगा तो मुँह ही देखता रहेगा ना कि क्या क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ. वाइब्स, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज. सो येस, आई फील दैट एनर्जी व्हेन आई सी. मैं लाहौर जाता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ, मुझे पंजाबी सुनाई दे रही होती चारों तरफ. आई डोंट अटेम्प्ट टू स्पीक, आई स्पीक रियली वेरी पोरली. आई डू अंडरस्टैंड. सो मुझे आवाज़ आती है, मुझे वैसी हंसी आ जाती है. कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई क्लीनर, अच्छा वो भी एक्सपेक्ट करते हैं. सो मैंने एक चीज़ नोट की है, जिन सिचुएशन में टिपिंग इन्वॉल्व होती है ना, लाहौर की अगर बात करें तो पंजाबी च गल करता है और वो चाहता है कि मैं भी, क्योंकि उर्दू इज़ फॉर्मल, आई एम बीइंग फॉर्मल विद यू. पंजाबी इज़ लाइक यार ब्रो है, तू प्रा है साडा, यू गेट इट. तो वो उस पर आने की करते हैं. और जब वो देखते हैं ना कि मैं नहीं बोल पा रहा, तो फिर वो भी उर्दू में आता है. सर आप ऐसा करें, बैग यहाँ से ले आएँ, आप रूम में जाएं, मैं आपकी रूम नंबर बता दें, मैं आपको सामान वहाँ पहुँचा दूँगा. वरना सर तुसी जाओ, मैं ले आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी. समझ रहे हैं? तो अगर वो कनेक्शन फील हो जाएगा तो टिप का रेट बढ़ जाएगा. अब तो ब्रो हो गए ना. सो येस, तो वो लैंग्वेज प्लेज दैट रोल. रही बात आपकी, आपने वो जसपाल भट्टी की बात की, तो इट्स शेयर्ड ह्यूमर, शेयर्ड म्यूज़िक. पंजाबी म्यूज़िक आई रियली लाइक. मुझे ये नहीं समझ आता, तलविंदर और ये करण औजला, नाउ माई पार्टनर, बिजनेस पार्टनर वुड बी लाइक, वो गाड़ी में करण औजला ही चल रहा होता है. जब व्हेन आई एम इन दुबई तो सिर्फ करण औजला चलता है, तो वो मुझे नहीं समझ आता. वो थोड़ी ज़्यादा ठेठ पंजाबी, वो फिर ट्रांसलेशन भी चल रही होती है साथ साथ. AP डिलॉन का जो गाना है चंद तकरा बना दे, मुझे लाइन नहीं समझ नहीं आती थी. कहंदी ओंदी सी चंद तकरा बना दे, तारे नहीं पसंद मैनू, हेठा सारे ला दे. तो मैं कभी फोकस ही नहीं करता था. तो फिर मुझे समझाया किसी ने, चांद तक रास्ता बना दे, तारे नहीं पसंद मुझे, नीचे सारे ले आ. हेठ मथे, सिंधी में भी हेठ मथे ही होता है, मथे यानी ऊपर, हेठ यानी नीचे, हेठा सारे ला दे. फिर समझ आया मुझे. सो मैं वो समझ नहीं पाता था. बाकी वो कौन सा मान होते थे, नहीं नॉट, खैर याद नहीं आ रहा, बट 90s पॉप वाले बहुत सुनता था. आई फील कनेक्ट. जसपाल भट्टी साहब, शेयर्ड ह्यूमर, मज़ा आता था. इंडिया पाकिस्तान के सेम प्रॉब्लम है. सेम गोज फॉर व्हाट्स हिज नेम, मुसद्दिक आलू वालिया नहीं, अरे यार सब ऑफिस वाले यार, बड़ा अच्छा उनका नाम था कैरेक्टर, शाहिद कपूर के पिताजी. तो उनकी भी टोन वेरी पंजाबी अंकल लाइक, तो बड़ा अच्छा लगता था, कनेक्शन फील होता था. सो येस, पंजाब हैज़ डिवाइडेड, बट ऑन पेपर नॉट फ्रॉम द हार्ट्स. और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, वॉज देयर नॉट, इसकी अब मुझे कोई सिख ही बता सकता है कि यार ये कैसे एक्सेप्ट हुआ कि ननकाना साहब पाकिस्तान में जा रहा है, सिख सारे उधर हैं, ये इस पे क्यों नहीं आया कि यार लाइन थोड़ी और आगे खींच दो कि ये तो इधर आए. अब कितने सिख महरूम रहे, कितने ऐसे ही चले गए. अब खुला है करतारपुर, ठीक है ना, कितनों ने पूरी ज़िंदगी, ज़ाहिर है यार उनका हज है, जिस तरह हमारा होता है. सोचे हम हमारे लिए सऊदी जाना ही
जाना ही ना हो, बंद हो बिल्कुल। कितने लोग इस उसमें आस में ज़िंदगी से चले जाएंगे कि यार उम्रा करना था, हज करना था। सो ये लाइन कैसे एक्सेप्ट हो गई कि जी करतारपुर पाकिस्तान में आ गया, जहाँ ज़्यादा मेजोरिटी है वहाँ जाना चाहिए था। सो यस, इट्स सैड दैट पंजाब गॉट डिवाइडेड, बंगाल वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, बट खैर वो एक अलग पॉलिटिकल रीजंस, बट एटलीस्ट फॉर पंजाब इज़ लाइक काफ़ी दुख होता है यार देख के। अब मैं अक्सर वो एक्टर्स के सुनता हूँ, कोई झंग में रहता था, कौन रहते थे वो यार, क्या नाम है उनका, ही इज़ रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स, झंग के थे वो, forgetting his name. I think he was also a minister. Oh, sorry, my memory is not serving me right. जस न जसविंदर नहीं, क्या नाम था यार, सॉरी यार सॉरी। खैर, तो वो अपने घरों को नहीं आ सके, देख नहीं सके, उनको मोहल्ला देखना होता है यार। मैं जब भी पुराने मोहल्ले जाता हूँ, आई शेयर इट विद अदर पीपल हु लेफ्ट पाकिस्तान फॉर गुड, तो वो बड़ा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं यार। घर तो घर होता है यार, जो बचपन जहाँ गुजरा होता है ना, घर वही होता है। बाकी सिर्फ आपकी लिविंग सिचुएशंस होती हैं। घर वही होता है जहाँ आप बड़े हुए, आपके बहन भाई थे, आप खेलते थे, तो घर इंसानों से बनता है। अब आपने भले बुर्ज खलीफा में स्टूडियो ले लिया हो या पेंट हाउस ले लिया हो, वो घर नहीं है, वो ईगो है आपकी कि मैंने ये लेना है। बट घर वही था जिसमें फैमिली थी। अब ये कि या इट्स सैड। सो सिमिलरली पंजाब जो है डिवाइड ऑन मैप्स, बट दिल में तो कभी नहीं हुआ। और फिर वही वाली बात है, आप चाहे मोहाली में हो, चंडीगढ़ में हो, कराची में हो, इट्स द वार्मथ, इट्स द स्पिरिट दैट्स फ्लोइंग। दरिया तो सेम ही है, तो वो नहीं चेंज हो सकता। सो या, बट थैंक यू फॉर अ वेरी लवली ईमेल, आई एब्सोल्युटली लव्ड रैंटिंग ऑन इट। कहाँ कहाँ निकल गया फारस पे इधर उधर, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड एक्सरसाइजिंग माई मेमोरी एंड या very I was really looking forward to visit India absolutely इस साल। I was in talks, I wanted more city, क्योंकि 3 cities अलाउ होते हैं ना, तो बहुत इतने सारे हैं। ठीक है, गोवा नहीं देंगे वीज़ा, नहीं जाना गोवा, थाईलैंड चला जाऊंगा, बट लाइक आई वांटेड टू सी हैदराबाद, आई वांट आल्सो सी लखनऊ एंड ऑफ कोर्स लुधियाना, बट फिर बॉम्बे सॉरी मुंबई रह जाएगा, दिल्ली रह जाएगा, मिज़ोरम भी देखना था। सो या, अभी ये बात चल ही रही थी, अब जंग हो गई, अब अगले 5 साल तो नहीं नज़र आता, मतलब वो हालात नहीं है। एंड देन स्पेशली व्हेन यू आर इन मीडिया, जब आपके चैनल ही ब्लॉक हो उस मुल्क में, वो मुल्क कहाँ आपको वीज़ा देगा। इट्स सैड, वी आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। मतलब कितने खाने आप खा सकते हो, कितने मज़े कर सकते हो, एंजॉय कर, दोस्त बना सकते हो यार। कितने आप रैंडमली निकल गए दिल्ली की सड़कों पे स्मोक सूंघते सूंघते। या मैन, वुड हैव बिन लवली। लाइक मैं अबरार भाई की वीडियोस बहुत देखता हूँ, और आप उसमें देख सकते हैं लोगों को इशू है ही नहीं, पब्लिक का इशू ही नहीं है, इशू सिर्फ 2 शहरों का है, और वो बस हमें फंसाया हुआ है इसमें। या फिर व्हाटएवर, जो भी वॉर इंडस्ट्री है वो ज़ाहिर कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रखती है, उनको भी तो अपना माल बेचना है। बट इट्स सैड यार, अ बिलियन पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। पड़ोस आप चेंज नहीं कर सकते भाई, पड़ोसी तो वही रहेगा, मगर ये कि फिर पड़ोसियों में फिर दोनों को बड़ा दिल करना पड़ेगा। आप तंग नज़री से छोटा दिल रख के हर चीज़ में इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं बनेगी, फिर वो शक ही रहेगा। और फिर वो शक वाले रिश्तों में जहाँ शक होते हैं, मियाँ बीवी पे, बीवी मियाँ पे शक करती है, वो घर कहाँ चलते हैं यार। तो ये भी फिर उसी तरह का है। पड़ोस बदल नहीं सकता, पड़ोस यही है, मगर एक डिग्निटी के साथ, इज़्ज़त के साथ, जब तक दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे, एक दूसरे को वैल्यू नहीं करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। बट पीपल आर मिसिंग आउट ऑन वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। माई फादर लास्ट विजिटेड लुधियाना in 77. Pakistan was playing India, so he traveled with the team, not with the team, but like following their footsteps. So they were हाँ matches देखे और फिर लुधियाना भी गए. So he got to see his ancestral city where he was born. उसके बाद फिर कभी भी नहीं गए. And it's sad. He's 80 now. तो या कितने शायद नहीं, दोस्त तो खैर उनके नहीं थे, बट या आप बैठ के बात करते तो शेयर्ड दोस्त मिल ही जाते ना कि हाँ मेरे अब्बा का दोस्त ये, इसका बाप और मेरा बाप दोस्त थे। बात करने ही अगर बैठते उस मोहल्ले ही जाते, यू नो,
या मैन, इट्स सैड, बट खैर जब तक दिल जिंदा है तो कनेक्शन तो रहेगा। बाकी जितनी कोई लाइनें खींचता रहे शौक से। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।